Hi, good morning, guys. I hope everyone hear me. Let me share my screen. Okay, thank you, guys. In today's session, guys, we talk about the VLOOKUP. How many one understand कि VLOOKUP क्या होता है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि VLOOKUP क्या होता है? What is VLOOKUP and why we need to learn VLOOKUP? What is the importance of VLOOKUP? आप में से कोई जानता है इसको? What is VLOOKUP? If yes, please reply me on chat section. If no, that is fine. Okay, this one is good for me. Good for me, not only you as well. Okay. If I talk about the VLOOKUP, guys, so VLOOKUP basically extract the data as is look like from vertically. जैसे आपका ज्वाइंस होता है अगर MySQL की बात करें तो लेफ्ट ज्वाइन आई एम टॉकिंग look like work or similar. If I talk about the VLOOKUP description, कि VLOOKUP होता क्या है, why we need to learn the VLOOKUP, does that means VLOOKUP extract the data, does that means from vertical information, well, vertical table on behalf of a lookup range. I would like to tell you how and why, how we need to understand our इसका मतलब क्या. If I talk about guys equal VLOOKUP, you can see, you can learn here. थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो तो see, looks for a value in leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specify. By default, the table must be sorted in ascending order. So lookup क्या होता है? Clearly यहाँ पे आपको visible होता है. Not a big deal. But lookup is most important, guys. Lookup is most important in any data scientist, any business analytics, any data analytics, any IS executive, वो कोई भी अगर वी लुकअप आपको क्लियर है दैट मीन थोड़ा सा आपका लाइफ स्मूथ होता है उससे. अब आप सोच रहे होगे हाउ इज दैट पॉसिबल. वी लुकअप इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? यस, हो सकता है. दैट इज द पॉसिबल गाइस. दैट इज द पॉसिबल. The reason being that we look up, suppose you have data in multiple table, the multiple sheet, you have data in separate sheet. That time, what you need to do, you don't have any idea if you need to extract the data from another table. Is that means another sheet. अब पूछोगे डेटा क्या है? Does that means suppose एक टेबल में एक सीट में आपके पास पेशेंट आईडी है. आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ. एक टेबल में आपके पहले समझने की कोशिश करिए, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे.
एक जगह पे आपका आईडी है, नेम है, और दूसरे टेबल में आईडी है और फोन नंबर। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फोन नंबर ओवर हियर इन एक्सेल शीट, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, इन फोन नंबर के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फॉर दैट रीजन यू नीड टू यूज VLOOKUP। जब आपको फोन नंबर दूसरे सीट से एक्सट्रैक्ट करना है, दैट टाइम यू नीड टू यूज VLOOKUP। इफ आई टॉक अबाउट VLOOKUP अगेन, कि VLOOKUP वर्क कैसे करता है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ VLOOKUP। अगर आप VLOOKUP की बात करो, इक्वल VLOOKUP टैब जैसे ही मारोगे, फर्स्ट आपको मिल जाएगा, यू कैन सी हियर। नाउ इज दैट गुड फॉर यू? अब आप पूछोगे ये लुकअप वैल्यू क्या है, और आप पूछोगे टेबल एरे क्या है, और आप पूछोगे कॉलम इंडेक्स क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या। यू हैव ऑल दीज क्वेश्चंस in your mind, right? If anyone any idea about the same, please try to reply me over the chat section for our better understanding, for your better understanding, ताकि हम कुछ इसको समझने की कोशिश करें, right? But that is completely up to you कि if you understand कि आप क्या कर सकते, राइट? कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। उसके बाद आपका एक लास्ट में आ रहा होगा रेंज लुकअप। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड गाइस कि ए रेंज लुकअप क्या है, रेंज लुकअप क्या है। इफ आई टॉक अबाउट द lookup value, lookup value is that means I am talking about this one. Lookup value is that means I am talking about this one. समझने की कोशिश करिएगा, अगर समझ गए तो लाइफ अपने आप आसान, नहीं समझे तो फिर राहुल, विवेक, गोपाल, अमित, श्याम, श्रेया, श्रेया, यू कैन सी योर गाइस, यही सेम यहाँ पे। माय बैड, ये हमारा फोन नंबर। तो दैट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर यू। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, दैट इज गुड। यानी कि लुकअप वैल्यू वी ऑलरेडी नोस कि अगर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी लुकअप वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इज दैट आर लुकअप वैल्यू। इज दैट क्लियर गाइस? तो लुकअप वैल्यू वी ऑलरेडी नोस व्हाट इज आर लुकअप वैल्यू, राइट?
अब ये कहोगे वी ऑलरेडी नोज व्हाट इज आर लुकअप वैल्यू, व्हाट इज दिस? तो दिस इज दिस, राइट? क्लियर? नाउ table array. What is table array, guys? That means you need to understand first table array होता क्या है? What is the importance of table array? How many one understand कि table array क्या होता है? Please try to reply me on chat section, guys. If you have idea about the same, कि what is the table array and what is the importance of table array? That means when we select any range from lookup range, this one is called table. That means we need to always select range from lookup well, sorry, or lookup range. Now you need to understand table range. Let me try for you guys. Equal we lookup value is this. आपने कॉमा लगाया, table array. Table array is that means you need to extract phone number from another data set. That time you need to understand what you need to do. टेबल एरे आपका क्या होगा? आईडी से लेकर फोन नंबर, ये आपका टेबल रेंज होगा, ये होगा आपका टेबल रेंज. नाउ नेक्स्ट वन इज इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर क्या होता है गाइस? हाउ मेनी वन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडेक्स नंबर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर? यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. अगर इंडेक्स नंबर 1 देते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे 1 और 0 दे सकते हो. अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स एग्जैक्ट मैच. अप्रोक्सीमेट मैच में थोड़े से एरर के चांसेस होते हैं, अप्रोक्स मैच करता है, अदरवाइज वो फुल मैच करता है. 0 to 1 दे सकते हो या दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. ट्रू आर फॉल्स दे सकते हो. जैसे ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. मैं अगर फॉल्स देता हूं, बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा, आप दे सकते. नाउ यू हैव क्वेश्चन कि आपने दो रेंज यहां पे क्यों सेलेक्ट किया? दो रेंज इसलिए सेलेक्ट किया है, स्टार्टिंग रेंज कहां से होगी? जो आपका होगा क्या? लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू आपकी क्या है? आईडी है, तो इसलिए यहां से शुरू होगी और ऑलवेज राइट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन नहीं पिक करेगा. ठीक है, राइट डायरेक्शन में जाएगी. सेकेंड कॉलम जो है उसमें फोन नंबर है, तो यही 1A है, 2A है. जो आपने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 की बजाय 2 होना चाहिए. 1 की बजाय 2 होना चाहिए, क्योंकि लुकअप रेंज आपकी, यानी लुकअप कॉलम इंडेक्स आपका 2 होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड कॉलम में आपका फोन नंबर है. और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स यानी अप्रॉक्स एंड एग्जैक्ट मैक्स के लिए होता है. दिस वन इज कॉल्ड वी लुकअप. राइट? Is that clear to all of you? As that means you need to enter कॉलम इंडेक्स नंबर. आपको समझ में आ गया? रेंज लुकअप वैल्यू क्या होती है? वी ऑलरेडी एक्सप्लेन विथ यू. राइट? तो इसमें मैंने आपको बताया एग्जैक्ट होता है, सॉरी अप्रॉक्स होता है फर्स्ट, एक एग्जैक्ट होता है. अप्रॉक्स जो होता है 1 होता है, एग्जैक्ट जो होता है 0 होता है. ये होता है ट्रू, ये होता है फॉल्स. दोनों में से या तो आप दे सकते हो 1 या ट्रू, या 0 या फॉल्स. बोथ रिप्रेजेंट, 0 और 1 रिप्रेजेंट एक ही को करेंगे गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये दूसरे को करें. Is that clear? There is any confusion till now to anyone? Please let me know. I am happy to take it.
Open to all guys. If I have any doubt, please let me know. प्लीज डोंट वेट कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ नहीं करते हैं, राइट? लेट मी सेव योर फाइल. One second, please. I have the data. Na? I need to pick this data and after that move for next. See, now you can see you guys. फर्स्ट तो ये आपको इसकी मोटा मोटा आपको कहानी समझ में आ गई होगी. What you need to do, what you don't need to do. Now I am trying to do something for you. Try to understand. जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मत बोलिएगा. जब समझ में आ जाता है तभी बोलिएगा, गाइस. अगर नहीं समझ में आता है तो कतई मत बोलिएगा कि हाँ हाँ, समझ में आ गया. दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये कैसे हो रहा. लेवल वन, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट all these details over here. All these details over here and try to understand what we need to do, what we don't need to do. Right? तो यहाँ पे आपका attention 100% required है. If you give 100% attendance, attention, that means you will understand what you need to do. If not, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है. Again, I would like to go लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे, क्योंकि आपको क्या लेना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. आपका यहां है आपके पास यहाँ है प्रोजेक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप, कैटेगरी, सब कैटेगरी. यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी. इज दैट मीन्स प्रोडक्ट आईडी कॉमन है. प्रोडक्ट आईडी कॉमन है. इज दैट मीन्स आपका लुकअप वैल्यू क्या हो गई, प्रोडक्ट आईडी हो गई. लुकअप वैल्यू क्या हो गई गाइस, प्रोडक्ट आईडी हो गई. और आपको निकालना क्या है, प्रोडक्ट निकालना है सबसे पहले. यानी कि जस्ट यू नीड टू राइट डाउन वी lookup product id is that means lookup value after that table array. टेबल array क्या होता है गाइस, you need to also understand the thing. One second. टेबल array क्या होता है, you also need to understand कि टेबल array होता क्या है. that means you need to move over here टेबल array. फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया जो आपकी क्या है, लुकअप वैल्यू से थी. सेकंड कॉलम पे मूव होगा कर्सर आपके, यानी दोनों कॉलम सेलेक्ट करोगे क्योंकि आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए. क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए, दैट्स व्हाई यू नीड टू
select both two column, राइट। वो टू कॉलम सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यू नीड टू प्रेस F4। यहां पे देखिएगा F4 करते ही ए और बी पे क्या हो गया, फ्रीज हो गया। ए और बी पे फ्रीज हो गया, कॉमा। कॉमा के बाद आपने क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 आपको प्रोडक्ट चाहिए, इस वजह से लिखोगे 2, कॉमा। अगेन आप फॉल्स लिखोगे क्योंकि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा, विजय ये आपने F4 क्यों किया, वाई F4 is important for you? For that reason, guys, again we need to move over here and try to understand why freeze is important। ये वाला सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम फ्रीज नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट गाइस। समझने की कोशिश करिएगा। हमने फ्रीज नहीं किया, फर्स्ट हमने फ्रीज नहीं किया, इसी से राइट करते हैं तो गलत हो जाता है, यानी कि ये गलत हो गया, राइट। बट जब आप फ्रीज करते हो, इसको फ्रीज करते हो यानी आपने जो इसका कॉलम दिया है, इस कॉलम को फ्रीज कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गाइस। इसको राइट करोगे तो ए U2V10 हो गया, उससे पहले क्या है, T2U10 हो गया, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। बट जैसे ही आप इसको F4 प्रेस करते हो और अब इसको ले जाते हो राइट, ये देखिए T2U2 भी हो गया। यानी जैसे ही आप डॉलर लगा देते हो T2U10 पे, T2 रिप्रेजेंट ए कर रहा, U10 रिप्रेजेंट ए कर रहा, राइट। U2 रिप्रेजेंट ए, U10 रिप्रेजेंट ए कर रहा। दैट मीन्स इन दोनों को आपने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करना का मतलब डॉलर लगा दिया, अब एक इधर उधर नहीं गया, राइट। So this one is most important in your life and you need to understand how we need to implement this। बट यहाँ पे क्योंकि पूरा आपने सीट का रेंज ले लिया है, एबी एबी का पूरा रेंज लिया है, तो आपने फ्रीज कर दिया एबी को, यानी अब एबी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसको नीचे जाओ, आप ट्रैक डाउन कर लो, सी। बट इफ यू वांट टू पेस्ट सेम डेटा पॉइंट ओवर हियर, क्या आप कर सकते हो, क्या इसको कर सकते हो? आंसर इज नो। आंसर इज नो। दैट मीन्स दिस वन इज चैलेंजिंग फॉर यू। क्या आप, आपके पास इतना टाइम है कि वन बाय वन सारे कॉलम्स में आप यही सेम डेटा पॉइंट लगाओगे? वे नंबर 2, आपने पहले तो ऐसे कर लिया, वी लुकअप अगेन प्रोडक्ट आईडी दिस कॉमा रेंज। आपको क्या लेना है, पहले आपने पूरा रेंज सेलेक्ट किया था, अब आपका जितना डेटा है वही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि X3C है तो आप इसको अगेन यू हैव टू ऑप्शन, इसको फ्रीज किया, कॉमा C कॉमा 0, यू ऑल्सो अप्लाई द सेम टाइप सी। बट यहां पे देखो आप क्या दिया, A1 से लेकर C639 तक दे दिया। इन दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट सेकंड कॉलम में क्या अंतर आपने किया? एनीवन एनी आइडिया अबाउट द सेम? If you have any idea, please let me know. This one is helpful for me to understand. Guys, try to understand what is the difference between both. What is the difference between both? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूजन हो रही है,
थोड़ी सी आपकी जिंदगी और आसान कर देता हूँ मैं, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग में। सी, यानी दोनों जगह हम प्रोडक्ट आईडी ही लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गाइस। पहले हमने पूरा रेंज सेलेक्ट किया था, अब हमने केवल इतना ही सेलेक्ट किया, प्लीज दिस। वैल्यू तो दोनों की सेम आई, वैल्यू दोनों की सेम आई। नाउ दोनों में अंतर क्या है? See, दोनों में अंतर क्या हो सकता है? एनीवन एनी आइडिया अबाउट द सेम? आप में से किसी को अंडरस्टैंडिंग हो रही है दोनों में सेम क्या है? किसी को? एनीवन अंडरस्टैंड अबाउट द सेम गाइस? नो? कोई बात, I'll expect, I'll explain this। और यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, और यही यहाँ पे समझना हो तो वो आसान है। यहाँ पे समझना हो तो वो आसान आपके लिए होगा। अब पूछोगे ये आसान कैसे होगा? फर्स्ट हमने क्या किया, VLOOKUP लगाया, इससे ये दोनों कॉलम को हमने ले लिया, फ्रीज किया, टू लगाया, जीरो कर दिया। तो सेकेंड हमने लगाया दिस, कॉमा, अगेन इसकी रेंज ले लिया, फ्रीज किया, कॉमा, टू दे दिया, जीरो दे दिया। अब दोनों में अंतर क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अब हम यहीं पे क्या करते हैं, ये एट है, ये नाइन है, ये टेन है, ये 11। यहाँ पे आप रखते हो मनीष, अरुण, धर्म, और यहाँ पे भी यही सेम थिंग्स आप अप्लाई करते हो। यू कैन सी योर, और यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? सपोज सेम नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ गाइस? आपने किया तो सेम है, बट फर्स्ट वाले में आपकी वैल्यू आ गई, सेकंड वाले में कुछ नहीं आया। व्हाई? व्हाई डिड दिस हैपन गाइस? आपके हिसाब से ऐसा क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने लॉजिक तो सेम लगाया है दोनों में। बट फर्स्ट वाले में यानी पी कॉलम में यू कैन सी ऑल द रिकॉर्ड्स, बट ऑन क्यू कॉलम देयर इज नो रिकॉर्ड। डू हैव एनी आइडिया अबाउट द सेम गाइस? व्हाई? कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? If anyone any idea about the same, I am happy to discuss. I am happy to understand. Please try to reply me on chat section, guys. Open to all. This one is good for your future to understand all these things, right? I'll explain. I'll explain कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या मतलब होता है। I'll definitely explain to all of you to understand all this. First, आपने क्या किया यहाँ? आपने यहाँ टी यू कॉलम को फ्रीज किया, टी यू कॉलम को पूरा फ्रीज किया, यानी ये एंड टू एंड रेंज दे दिया है, राइट?
एरे की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ एंड टू एंड आपने रेंज दे दिया, बट इसमें क्या किया है आपने, केवल स्पेसिफाई रेंज इतना किया है और इसको फ्रीज कर दिया है। इससे नीचे कोई भी वैल्यू आती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, राइट। आपने स्पेसिफाई कर दिया है क्या, इसके बाद कोई भी वैल्यू आती है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने इस वाले में स्पेसिफाई रेंज किया है, स्पेसिफाई रेंज इतने को किया है, बट इन दिस आपने क्या किया है, टी यू को फ्रीज कर दिया, यानी कि इस पूरे रेंज को ही फ्रीज कर दिया। ड्यू टू दिस, आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ नो, please tell me. This one is very helpful for me and you as well to understand all this. तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस। Why this one is important for you? You need to understand this. Second आते, let me connect with another one and try to understand कि हाँ उसको कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम इन सबको ले लेंगे। टाइप टू, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एरे। प्रभात चौहान जी ट्रू कहता है कि अप्रॉक्स मैच करेगा, यानी कहीं पर डेसिमल वैल्यू है तो हो सकता है वो एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू प्रेजेंट कर दे आपको। बट जब ऑलवेज वी लुकअप में ऑलवेज आप जीरो को यूज करोगे, प्लीज नोट दैट, आप जीरो या फॉल्स को यूज करोगे, यू डोंट नीड टू यूज वन। वन आपके यूज का नहीं है, ऑलवेज यू नीड टू यूज जीरो यूज करो या आप फॉल्स यूज करो, बोथ आर इक्वल, और यही आपके लिए सही रहेगा। और दिस वन इज रिटर्न एग्जैक्ट वैल्यू, यानी एग्जैक्ट मैच आपको देगा। बट अगर टू की बात करें, टू में थोड़ा बहुत अप डाउन नंबर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हो रहा होगा, हो सकता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू रेफर, यू नीड टू प्रेफर फॉल्स ऑलवेज। आई होप इज दैट क्लियर प्रभात? Now I would like to talk about the array, guys. I would like to talk about the array. तो array क्या होता है, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट, सपोज आपको चार कॉलम में डेटा पॉइंट इंटर करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, इन फोर कॉलम के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, that means you will better understand what you need to do, right? अगर ये आप समझ गए तो दैट मीन्स आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको क्या करना है, राइट गाइस? तो जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट बोथ कॉलम, यानी बोथ फोर कॉलम, आफ्टर दैट यू नीड टू यूज इक्वल, इक्वल वी लुकअप, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपकी प्रोडक्ट आईडी हो गई, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। टेबल एरे इज दैट मीन्स आर रेंज। रेंज कहां से हम लेंगे, यहां से पूरा सेलेक्ट किए और ये टू से लेंगे, थ्री, फोर, फाइव, यानी दो से पांच तक की हमारी रेंज है, दो से पांच तक की हमारी रेंज है। हमने F4 किया, फ्रीज हो गया, कॉमा लगाया, एक फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी टू, थ्री, फोर एंड फाइव। कितने कॉलम थे गाइस, वन, टू, थ्री, सॉरी,
ए फर्स्ट तो होगा नहीं, फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी है, 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, अगेन कॉमा जीरो दे देंगे। और इसमें जब इंटर मारते हैं गाइस, कंट्रोल शिफ्ट आपका प्रेस रहना चाहिए, उसके बाद आप इंटर मार दो। सी ऑल द वैल्यूज, आप चाहोगे कि वन बाय वन पेस्ट करें, नहीं होगा, बट हो रहा है यार। गुड, गलत हो रहा है ना। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, साथ में सारा वैल्यू पेस्ट कर देना होगा। सी यानी आपने एक एरे बना दिया, एक साथ सबको प्रेजेंट कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देयर इज एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? प्लीज लेट मी नाउ इफ आई हैव एनी डाउट, एनीवन। किसी को कोई डाउट है इस पे, प्लीज लेट मी नाउ। कौशल कुमार जी, इसका रीजन ये है कि हमने इन चारों को एक साथ लाना था। आपका क्वेश्चन 2 3 4 5 हमने क्यों लिया है, यहां पे देखिए, हमने ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। 1 ए होता है, 2 ए है, इसलिए 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। यानी हमने पांचों कॉलम, चारों कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। और उसके बाद हमने फॉल्स लिख दिया, यानी जीरो लिख दिया। यानी ये पांचों कॉलम की वैल्यू हमने पिक किया है यहाँ पे। ये 2 की वैल्यू है, 3 की है, 4 की है, 5। और रेंज हमने ऑलरेडी दे रखा था कहां तक, ए से ई तक का। यानी यहां से ये पूरा रेंज हमने दे रखा। कौशल, आई होप इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? यस यस। अगर विद द लुकअप वैल्यू आप करते हो तब उसका भी वैल्यू डेटा आएगा, ठीक है। देन यू नीड टू सेलेक्ट 5 कॉलम। फिर आपकी, आप यहाँ हेडर मैच करो ना। हेडर में आपको क्या चाहिए, आपको सब कैटेगरी, कैटेगरी टाइप, प्रोडक्ट चाहिए था ना। सॉरी, हेडर में दिस वन। जब आपके पास प्रोडक्ट आईडी ही नहीं है तो आप वन स्किप करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? देयर इज एनी कंफ्यूजन टू एनीवन, प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। ओपन टू ऑल है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लास्ट वन। समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सपोज आपको केवल प्रोडक्ट एंड कैटेगरी चाहिए, दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू। सी, आपने दोनों सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट आईडी, आपने रेंज पूरा लिया। आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट और कैटेगरी चाहिए, तो यहां तक केवल लोगे, पूरा भी लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेना चाहो तो ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 4 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, और 4 ले लिया, यानी 2 एंड 4 ले लिया। इंडेक्स आपने कॉमा जीरो, यू कैन सी, आपको जो डेटा पॉइंट चाहिए था वो आ गया। डजेंट मैटर। वो रिप्रेजेंट केवल और केवल इतना करता है कि आप कौन कौन से इंडेक्स को पिक करना चाहते हैं। प्रभात चौहान जी, फॉर यू, आई होप इज दैट क्लियर टू यू? प्रभात,
राइट। Now I am moving another one and try to understand what we need to do next and how we'll implement the same. समझने की कोशिश करिए। इक्वल टू वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप प्रोडक्ट आईडी कॉमा दिस। हमने लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, ए को फ्रीज कर देंगे, ए पे डॉलर लगा देंगे, यानी कि ए इधर उधर कहीं नहीं जा सकता है। और यहां पे भी ए को मैंने क्या किया, फ्रीज कर दिया, यानी इसको हम राइट भी ले जाएंगे, ए से बी में नहीं जाएगा ये, ठीक है। और ए भी ए से बी में नहीं जाएगा, बट ए बी से सी होगा जब आप राइट ले जाओगे, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या देना है, सी। अब यहीं पे अगर मैं ये, सॉरी आई थिंक कॉपी था, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब यहीं पे मैं क्या करूं, इस टू को यहां पे कॉल करा दो, सी। हमने इस टू को क्या किया, यहां पे कॉल करा दिया, और हमने क्या किया, वन को फ्रीज कर सकते हैं, बी वन बी टू, वन को ही फ्रीज करना है, सी। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट भी ले जाएंगे तब भी काम करेगा, इसको डाउन भी ले आएंगे तब भी काम करेगा। array not required in such scenario guys। अब आप कहोगे ये कैसे कर दिया, यानी हमने इसको कर दिया, इसको राइट भी ले जाओ लेफ्ट भी ले जाओ तब भी काम करेगा। क्या किया हमने, ए को फ्रीज कर दिया, ए डॉलर का मतलब हो गया ए डॉलर टू। ऐसे अगर करो, वन टाइम डॉलर दोगे या फोर प्रेस करोगे कुछ नहीं, वन टाइम दोगे दोनों जगह डॉलर हो जाएगा, सेकेंड टाइम दोगे टू डॉलर हो जाएगा, थर्ड टाइम दोगे ए डॉलर हो जाएगा। क्लियर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ए डॉलर क्या करता है। जब आप राइट ले जाओगे तो ए बी नहीं होगा, जब डॉलर ए से पहले होगा। जब डॉलर ए के बाद है, यानी कि ऐसे, जैसे ए टू, ए डॉलर टू है, यानी आप नीचे नहीं ले जा सकते हो, ए से ए टू है तो ए थ्री नहीं होगा, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें तो राइट ले जाना था यहां से, यानी कि हम नेक्स्ट कॉलम रोज पे जाएंगे, बट नेक्स्ट रो पे अगर ए टू नहीं रहेगा तो ए बी टू हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन हाउ, यू कैन सी। अभी कुछ नहीं लगाया, जैसे ही इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, बी टू हो गया। बट यही ए टू को अगर फ्रीज कर दिया हमने, यानी ए टू डॉलर लगा दिया, तो ये देखिए क्या हो गया, ऊपर वाले की ही वैल्यू आ गई। क्यों आ गई, रीजन ये है कि यहाँ पे ए टू ही आया, क्योंकि टू को आपने फ्रीज कर दिया। बट यहीं पे टू को आपने हटा दिया, डॉलर को हटा दिया आपने, और यहाँ पे डॉलर लगा दिया, तो ए एकदम परफेक्ट काम करने लगता है हर लगता। वही सेम कहानी यहाँ पे है, हमने इन दोनों को फ्रीज कर दिया, दैट इज फाइन। अगेन हम रेंज लेंगे, बी रेंज, सी रेंज, यानी ए रेंज बढ़ता जाए। ये जो नंबर हमने दे दिया ऊपर, ये नंबरिंग के लिए कि जितने कॉलम हो उतना नंबर, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। सी, यू कैन सी गाइस, ये रेंज आपका बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमने जीरो लिख दिया, यानी
फिक्स। यानी इसमें क्या करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आपको कितने इंडेक्स देने हैं, ठीक है। वो इंडेक्स आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं, कि डायनेमिक बना दिया है। जितने भी कॉलम ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। दिस वन इज गुड फॉर यू, टू गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू, राइट। इफ आई हैव एनी क्वेरी डाउट कंसर्न प्लीज लेट मी नो गाइस, आई एम रेडी टू टेक। किसी के दिमाग में कोई भी क्वेरी आ रही है तो प्लीज गो अहेड, पूछ सकते हैं आप। ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पूछेंगे। ओपन टू ऑल। वन